Hello students, now welcome to the Rashmi Singh class. Now today we are going to complete the second part of civics, understanding diversity. And in the first session we have done what is diversity. Diversity means being different or variety of anything is known as diversity. ठीक है, तो diversity makes us unique, means all of us, diversity makes all of us unique and it always include our backgrounds and personality. Background means आपकी height कैसी है, tall है, short है और fair, ये सब चीज़ें include करती है and your personality and background. पर्सनैलिटी में तो आपका लॉन्ग शॉर्ट सब आ गया एंड बैकग्राउंड में योर लैंग्वेज, योर रिलीजन, योर कास्ट, एवरीथिंग कम्स. सो दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी. इन शॉर्ट वी कैन से द डाइवर्सिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ differences. It helps us to shape up our ideas and perspectives. Clear? Now come to diversity in India. We are living in a diverse country. I told you yesterday also. We have different type of communities, tradition, customs, languages and dress style, food style, ये सब. लेकिन ये सब आया कहाँ से, कैसे डाइवर्स हो गई हमारी कंट्री? हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी? तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी. मीन्स डाइवर्सिटी आई कहाँ से, कैसे पैदा हो गई अपने आप. क्लियर? तो फर्स्ट थिंग, द मूवमेंट ऑफ द पीपल मीन्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. Movement of the people we have studied right from the class 6 that people movement migrate from one area to another area. There were various reasons for their migration or movement because of natural disasters. कहीं तूफान आ गया है, बाढ़ आ गई है, ड्रॉट्स हो गए, उसकी वजह से दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड सेटल डाउन इन अदर प्लेस. और वहाँ पे ऑलरेडी सम पीपल्स आर लिविंग, तो उनका कल्चर एंड इनका कल्चर इज डिफरेंट एंड दे स्टार्टेड लिविंग एट वन प्लेस. नाउ द डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन. Clear? So one is the factor responsible, the movement of the people, and they move the movement, the reason for their movement, one is for natural disaster, for their livelihood, अपने livelihood के लिए they move from one place to another place, and for trading purpose they move from one place to another place. So they have to adapt themselves the historical and cultural background of that particular area. Clear? The history of many places shows that how many different cultural and traditional influences have helped to shape the life. Clear? In this way, that area have the diverse culture because so many peoples come from different areas and settled over there. So that area has diverse tradition, custom and languages and different food style and dress style. Clear? And the second factor which affect the diversity, geographical factors. Geographical factors means the topography, means the what is the nature of the land. Topography means the nature of the land, means the mountainous है, deserted area है और coastal area के पास है, आपका topography कैसी है वो influence करता है. ठीक है? When people adapt their lives to the geographical area, according to geographical area, people adapt their occupation, their life and their food style also, their occupation also. Clear? तो geographical and historical जो influences देखे हैं उससे तीन चीज़ें निकल के आती हैं. The food people eat, it influenced by the historical or geographical factors, and the clothes they wear and the work they do. अब यही तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे दो एरियाज. वन इज द माउंटेनियस एरिया एंड वन इज द कोस्टल एरिया. तो वील टेक द टू एरियाज, लद्दाख एंड केरला. सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज केरला. केरला इज इन द साउथ वेस्ट. दिस इज द साउथ एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन. दिस इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन and this is Ladakh. Ladakh is on the top of the map और जो अब लद्दाख है it is controlled by the union government.
ठीक है, दिस इज यूनियन टेरिटरी। पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था वो हमारी स्टेट थी, नाउ इट इज़ नॉट अ स्टेट, अब इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। ये आपका लद्दाख, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। नाउ कम टू लद्दाख। जैसे कि आपको बताया लद्दाख इज ऑन द हायर एल्टीट्यूड, तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है एंड मैक्सिमम टाइम द एरिया इज कवर्ड बाय द स्नो, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ का एग्रीकल्चर नहीं है, इट मीन्स द मेन ऑक्यूपेशन मीन्स द ऑक्यूपेशन द वर्क दे डू द पीपल रियर्स द एनिमल्स। तो वहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है द रियर ऑफ एनिमल्स, सो दे कीप द शीप एंड गोट्स ओवर देयर। स्पेशल शीप्स होती हैं जिससे जो ऊन निकलती है, जो उसकी ऊन से शॉल बनाई जाती हैं, पश्मीना शॉल्स एंड कार्पेट्स, एंड दे आर वेरी पॉपुलर एंटायर इंडिया। क्लियर? तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द लद्दाख इज वीविंग कारपेट एंड पश्मीना शॉल्स। क्लियर? And they eat meat and milk because there is no agriculture, so they depend on the meat and milk of the animals. जो वो जानवर पालते हैं उन्हीं का मीट और मिल्क पे उनका डिपेंड करता है फूड। ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन इज बुद्धिज्म एंड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड बुद्धिज्म है, एंड बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। तो हमारा जो ये लद्दाख है इट इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल तिब्बत, इसको लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। क्लियर? एंड द एपिक ऑफ तिब्बत केसर सागा, एंड दिस वॉज परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, दोनों मिलके ये परफॉर्म करते हैं। ओरल ट्रेडिशंस में ये ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो दे सिंग द केसर सागा एंड इट वॉज संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द लद्दाख। लद्दाख समझ में आ गया, हायर एल्टीट्यूड पे है, एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हायर एल्टीट्यूड, मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय स्नो, मेन ऑक्यूपेशन इज rearing of animals and they depend on meat and milk, and the profession weaving carpet and pashmina shawls. Clear? Now come to the Kerala. Kerala is in the southwest of India. मैंने अभी आपको बताया southwest of India, and one side it is covered by the ocean and the other side is covered by hill or a small mountain you can say. And the spices, number of spices are grown here. यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा, पेपर, कार्डमम, these spices are grown here, बहुत ज़्यादा होते हैं. And Jewish and Arab traders were the first to come. And the Christianity, Saint Thomas brought the Christianity to this area. यहाँ पे Christianity कैसे prevailed है? Because Saint Thomas यहाँ पे Christianity लेके आए थे. ठीक है? एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं. कौन कौन से रिलीजन है? हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी. क्लियर? एंड लैंड इज सो फर्टाइल बिकॉज दिस एरिया इज नियर टू द ओशन, तो इरिगेशन की प्रॉब्लम नहीं है एंड लैंड इज सो फर्टाइल, तो राइस इज ग्रोन हियर. ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या आपका इम्पॉर्टेंट हो गया? द मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर एंड फिशिंग बिकॉज इट इज नियर द coastal area, तो fishing is their main occupation and agriculture is also. Rice is grown here and main festival is Onam, और इस main festival का एक main attraction is the boat race. बहुत बड़ी बोट होती है, 100-200 आदमी इकट्ठी उस बोट को चलाते हैं. बोट रेस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल. क्लियर? अब हम दोनों में सिमिलैरिटीज देखते हैं. द फूड पीपल ईट, यहाँ पे फूड इज मीट एंड मिल्क. क्लियर? एंड यहाँ पे राइस एंड फिश. क्लियर? क्योंकि राइस यहाँ पे उगता है एंड फिशिंग से वो फिश वगैरह पकड़ते हैं. एंड द क्लोथ्स दे वियर, यहाँ पे जनरली दे वेयर द वुलन क्लोथ्स बिकॉज दे आर ऑन द हायर एल्टीट्यूड, और यहाँ पे बिल्कुल सदर्न टिप पे हैं तो इनके वुलन गारमेंट्स नहीं होते, ये कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं. एंड द वर्क दे डू, their main profession is the weaving of pashmina shawls and carpets, और यहाँ पे इनका एग्रीकल्चर हो गया एंड फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. क्लियर? नाउ come to the unity in diversity. What does it mean? It means unity, एकता में अनेकता. ठीक है? एकता में अनेकता. ठीक है? हमारी जो इंडिया है उसको बोला जाता है, एंड द वन फ्रेज इज गिवन फ्रॉम आवर former
प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब टू इंडिया, मतलब दिस इज अ फ्रेज एंड इट इज कॉइंड बाय द जवाहरलाल नेहरू। क्यों बोला गया था? इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने क्या कहा? इंडियन यूनिटी इज नॉट इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, मीन्स इंडियन यूनिटी जो है वो बाहर से इम्पोज की हुई नहीं है, बाहर से वो नहीं है, बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, वो हमारे अंदर से अपने आप पैदा होती है। एंड इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल ऑल द इंडियंस they belong to the different community, religion, custom and caste, but they all together stood in front of Britishers, इकट्ठे ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए खड़े हो गए। they went together to jail and they stood together in all the rallies, quit India movement and freedom struggle, सब में उन्होंने अपनी यूनिटी शो की। Although the Britishers thought that we can divide the Indians very easily because they are different from each other, but वो हमें divide नहीं कर पाए, we showed our unity. तो in this way we can say unity in diversity is correct phrase which is coined by the भूल गए आप लोग, which is coined by the Jawaharlal Nehru. Clear? So in this way we have complete the chapter. What is diversity? Diversity means the being different. ठीक है? And diversity in India, India is a diverse country, everybody knows, because every community, their religion, their custom, language, dress style, food style, everything is different. And how do we explain diversity? Diversity कहाँ से आती है? It's depend on the two important feature, historical factors and geographical factors. Clear? These two are two very important. And the food of people eat, the clothes they wear, the work they do, this creates the diversity in India. इससे से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है और ये किसकी वजह से है? जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। क्लियर? सो वी हैव गिवन द टू एग्जाम्पल, वन एक लद्दाख माउंटेनियस रीजन एंड द केरला द कोस्टल रीजन। क्लियर? एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, we all are belongs to the different community but we are one Indian. जब भी हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं तो हमें कैसे पहचाना जाता है? वी आर इंडियन, इंडियन पासपोर्ट हमारे पास होता है। ये नहीं कि हमारे पास गुजराती का पासपोर्ट अलग है, महाराष्ट्रन का अलग है, बंगालीज का अलग है। वी ऑल आर इंडियंस एंड वी शोड आवर यूनिटी इन ब्रिटिश टाइम ऑल्सो। क्लियर? सो इन दिस वे वी कंप्लीट दिस चैप्टर। समझ में आ गया होगा बच्चे? बहुत इजी चैप्टर है, और अगर नहीं समझ में आया है यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और अगर समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू वांट द नेक्स्ट नोटिफिकेशन देन प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, थैंक यू।